Good morning to everyone. Yesterday's lecture we have done few sums based on purchase consideration. Even today we will solve two of the sums on purchase consideration, and from next lecture onwards we will start with the full-fledged sum. So let us start with our first sum. Chaitanya Limited is absorbed by New Wave Limited. By आना चाहिए, is absorbed by New Wave Limited. Following are the summary balance sheets of the above two companies as on 31st March 2012. Actually below 2 होना चाहिए. Below two companies as on 31st March 2012. तो यहाँ पे what is given, share capital में paid up share capital दिया है. कितना शेयर है? 10,000 शेयर्स है. 10,000 शेयर 100 रुपीज का, 70 पेड अप. तो 100 10,000 into 70 is 7 lakh. There are 10,000 equity shares in Chaitanya Limited. 100 rupees share but only 70 paid up. So 10,000 into 7 lakh. And Chaitanya Limited is absorbed by New Wave Limited. मतलब New Wave Limited में is the purchasing company and Chaitanya Limited is a vendor company. Chaitanya Limited is absorbed by New Wave Limited, means the one who is selling the business, vendor company Chaitanya, that is a transferor company, and transferee company, that is the purchasing company, is New Wave Limited. So in New Wave Limited, 1 lakh equity shares of rupees 100 each, rupees 75 paid up is 1 lakh into 75, that is 75 lakhs. In New Wave Limited, there are 1 lakh equity shares of rupees 100 each, but only 75 paid up, which comes to 1 lakh into 75, that is 75 lakhs. Reserve fund in Chaitanya, there is 8 lakh 50,000. 22 lakhs P&L account, 3 lakh, 2 lakh creditors, 2 lakh, 1 lakh 80,000. In the asset, 20 lakh 30,000, cash in hand 20,000. In New Wave, it is 98 lakh 10,000 and 2 lakh 70,000. So now what they have told, it was decided that the holder of every 3 shares in Chaitanya Limited was to receive 5 shares in New Wave Limited. So they say जिनके पास 3 शेयर है चैतन्य लिमिटेड में, उनको न्यू वेव लिमिटेड का 5 शेयर्स मिलेगा. फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड इन चैतन्य लिमिटेड, the one will receive 5 new shares in New Wave Limited. 5 shares in New Wave Limited. 3 के बदले में 5. Any confusion here? For 3 shares in Chaitanya Limited is being absorbed by New Wave Limited. Chaitanya Limited is being absorbed by New Wave Limited. So आप Chaitanya Limited में अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको New Wave Limited का 5 शेयर मिलेगा. प्लस इसके अलावा as much cash as is necessary to adjust the rights of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of shares as per respective balance sheet. तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. वी विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट. बोलते हैं कि ये शेयर्स तो मिलेगा, मीन्स 3 शेयर के लिए 5 शेयर न्यू वेव लिमिटेड में तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपके शेयर होल्डर्स का राइट्स एडजस्ट करने के लिए शेयर्स के अलावा प्लस कैश भी मिलने वाला है इन अकॉर्डेंस टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एज पर द रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट. सो लेट अस फाइंड आउट, लेट अस वैल्यू द शेयर. सी इंट्रिंसिक वैल्यू is the valuation of share. When we value the share as per intrinsic value, so let us find out intrinsic value of
shares. So how to do this? तो यहाँ पे particulars, what is the name of? Name is Chaitanya and New Wave. इनका शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, दैट इज असेट के ऊपर बेस करके. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इज अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर वेयर वी कंसिडर द असेट्स. सो we value the shares according to the net assets in the company. तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, शेयर्स का ये वैल्यूएशन करने का तरीका है जिसमें हम नेट असेट के बेसिस में शेयर्स को वैल्यू करते हैं. तो इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वी विल रिक्वायर द व्हाट इज गिवन इन द असेट साइड. हमें सन्ड्री असेट्स दिया है. नेट असेट मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, असेट, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल असेट्स. सो हमारे पास सन्ड्री असेट है और हमारे पास यहाँ पे कैश इन हैंड है. तो वो दोनों पहले लिखते हैं, इससे हमें टोटल असेट मिल जाएगा. तो हमारे पास इधर 20,30,000 और इधर कितना है असेट, सन्ड्री असेट 98,10,000. और हमारे पास कैश इन हैंड अलग से दिया है 20,000 एंड 2,70,000. ये दोनों को ऐड किया तो वी गेट total assets which is equal to 20,50,000 and तो ये हो गया. इससे क्या करना है, इससे लेस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर, रिजर्व फंड इंटरनल लाइबिलिटी है, इट इज रिजर्व एंड सरप्लस. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है. We have only creditors. So creditors का क्या वैल्यू है, 2 लाख है और 1,80,000 है. 2 लाख एंड 1,80,000. सो वो लिख लेते हैं 2 लाख एंड 1,80,000. ठीक है. तो हमें नेट एसेट मिल जाएगा. इसमें विल गेट द net asset, we get the net assets of the company. So ये हो जाएगा 2 लाख माइनस करेंगे तो 18,50,000. 20,50,000 से 2 लाख माइनस किया, we got 18,50,000 and 1,80,00,000 से जब 1,80,000 माइनस किया तो we get 99 lakhs. दिस इज द नेट एसेट ऑफ द कंपनी. तो इसको हम डिवाइड करेंगे विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो हमें पर शेयर का वैल्यूएशन मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो हाउ मच इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? इन चैतन्य इट इज 10,000 and in New Wave it is 1 lakh. करेक्ट. चैतन्य में 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है और न्यू वेव में 1 लाख है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हियर इज 10,000 and here it is 1 lakh. Here it is 1 lakh. So what will be the intrinsic value per share? Intrinsic value per share will be net asset divide by net asset divide by number
of equity shares, number of equity shares. So 18,50,000 divide by 10,000 karo, you will get rupees 185. And then we have 99 lakh divide by 1 lakh, which is equal to rupees 99. So as per the intrinsic value method, the valuation of share of Chaitanya is 185 and New Wave it is 99 rupees per share as per the intrinsic value method, that is valuation based on the net assets of the company. Valuation of shares based on the net asset of the company. The valuation of share, the value of per share of Chaitanya is rupees 185 and of New Wave Limited it is rupees 99. So now what they have told, that we have to adjust the rights. According to the rights, we have to give the give the amount in cash. According to the rights, हमें क्या करना है, अमाउंट कैश में देना है. तो यहाँ पे हम दोनों के इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस देखेंगे कितना है. देखो इनका 185 है शेयर का वैल्यू और इनका 99 है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? दैट डिफरेंस वी विल पे इन कैश. उन लोग ने क्या बोला, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ऑफ दो बोथ कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी, उसका जो भी डिफरेंस होगा वैल्यूएशन में, जो भी डिफरेंस होगा उतना हम कैश पे करेंगे. मतलब शेयर के वैल्यूएशन में जो भी डिफरेंस होगा बोथ द शेयर्स के वैल्यू में, वो डिफरेंस वी विल पे इन कैश. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में जो भी डिफरेंस होगा, द डिफरेंस वी विल पे इन कैश. सो अमाउंट टू बी पेड इन कैश, अमाउंट टू बी पेड इन कैश, जो भी वैल्यू का डिफरेंस होगा, वैल्यूएशन में डिफरेंस होगा उसके हिसाब से. सो यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कितना शेयर है इनका, 3 शेयर्स, 3 शेयर्स इन चैतन्य लिमिटेड. यहाँ पे चैतन्य लिमिटेड के 3 शेयर के लिए, चैतन्य लिमिटेड के 3 शेयर के लिए क्या हो रहा है, चैतन्य लिमिटेड के 3 शेयर के लिए ये मिल रहा है ना, 5 शेयर मिलेगा न्यू वेव लिमिटेड का. तो एक शेयर का वैल्यू कितना है, 185. अभी मिला इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स, 1 शेयर इज 85. तो 3 शेयर्स विल बी हाउ मच, मल्टीप्लाई करो. देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स इन चैतन्य लिमिटेड है. तो एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर is 185. तो 3 shares will be how much? Multiply करो, you will get 555. Do the multiplication. Intrinsic value of 3 shares in Chaitanya Limited. 1 share is, per share is 185. So 3 shares will be 555. And we want intrinsic value of 5 shares. 5 shares in New Wave लिमिटेड. ये कितना, 99 है एक शेयर का, तो 5 शेयर का कितना होगा, 5 शेयर का कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई विथ 599 इंटू 5, यू विल गेट 495. तो अब डिफरेंस बिटवीन पेएबल इन कैश, डिफरेंस जो भी होगा विल बी पेएबल in cash for every 3 shares in Chaitanya Limited.
जो भी डिफरेंस होगा, कितना है डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 555 minus 495. So how much you are getting? Just see the difference. It is 60. The difference is 60. The difference is 60. Now we will calculate the purchase consideration. Purchase consideration. तो यहाँ पे क्या बोला है? That पहले तो हमें चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स है। सिर्फ क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको इन इक्विटी शेयर्स कितना मिलेगा? इन इक्विटी शेयर्स कितना मिलेगा? और इक्विटी शेयर्स के लिए यहाँ पे क्या रेशो है? वर्किंग नोट में जाते हैं। वर्किंग नोट में क्या बोला है? रेशो क्या है? व्हाट इज द रेशो? 3 चैतन्य लिमिटेड के 3 शेयर के लिए न्यू वेव का 5 शेयर मिलने वाला है। 3 शेयर के लिए न्यू वेव का 5 शेयर्स मिलने वाला है। ऐसे ही दिया है क्वेश्चन में, दैट फॉर 3 शेयर्स ऑफ चैतन्य they will get 5 shares in new wave. पहले लाइन में ही दिया, देखो, it was decided that the holder of every 3 shares in Chaitanya was to receive 5 shares in new wave limited. तो हमारे चैतन्य लिमिटेड में टोटल 10,000 शेयर्स है। चैतन्य लिमिटेड में टोटल 10,000 शेयर्स है। तो 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होगा? 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, कितना होगा? 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3. हाउ मेनी शेयर्स? हाउ मेनी शेयर्स यू गेट? How many shares you get? Check and tell me how many shares you are getting after doing the cross multiplication. You are getting 10,000 into 5 divide by 3. You are getting 16,666.666 ऐसा मिल रहा है आपको। 0.666 ऐसा यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो फ्रैक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब हम लोग शेयर्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्रैक्शन जो होता है वो कैश में मिलेगा। जो डेसिमल होगा, कल के सब में ही बोला था, शेयर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड इन डेसिमल्स। तो जो प्रॉपर नंबर होगा उसका हम शेयर्स देंगे, और जो डेसिमल होगा वो हम फ्रैक्शन होगा वो हम कैश में एडजस्ट करेंगे। आई हैड टोल्ड यू इन यस्टरडेज लेक्चर आल्सो दैट द कंपनी कैन नॉट पे कैश ऑन डेसिमल, सॉरी, द कंपनी कैन नॉट पे शेयर्स ऑन डेसिमल। डेसिमल में शेयर्स नहीं दे सकते, शेयर्स के लिए प्रॉपर नंबर ही होना चाहिए, शेयर्स के लिए प्रॉपर नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के लिए क्या नंबर है? इक्विटी शेयर्स के लिए नंबर है 16,666, 16,666 into what is the market intrinsic value? एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? न्यू वेव का एक शेयर का वैल्यू है 99 रुपीज। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है एक शेयर का? क्योंकि यहाँ पे पर शेयर का वैल्यू नहीं दिया, तो हमें तो इंट्रिंसिक वैल्यू को ही ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज द पर शेयर वैल्यू कितने में शेयर मिलेगा ऐसा कुछ नहीं बोला है। दे हैव ओनली सेड 3 शेयर के बदले में 5 शेयर, बट कितना वैल्यू? तो अगर कोई ये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिया होता तो हमें उसका फेस वैल्यू 100 लेना पड़ता, बिकॉज फेस वैल्यू ऑफ न्यू वेव, फेस वैल्यू उसका क्या है? 100
शेयर रुपीज बट 75 पेड अप, लेकिन अभी जो पेमेंट कर रहे था वी विल टेक द इंट्रिंसिक एज इट इज टोल्ड इन द क्वेश्चन. सो 16,666 इंटू 99 कितना मिलता है? 1,64,00,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 16 लाख, 16,49,934, 934 ये आंसर मिला. 16,49,934. तो ये जो ऊपर का रहेगा फ्रैक्शन दैट वी विल गिव इन कैश, दैट वी विल गिव इन कैश, जो भी ऊपर का फ्रैक्शन रहेगा दैट वी विल गिव इन कैश. सो ऊपर का फ्रैक्शन है 0.6666. 4 बार 6 लिखना है, 3 बार 6 लिखना है, 2 बार लिखना है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है. लेकिन जितना ज्यादा लिखेंगे उतना प्रॉपर नंबर आएगा. इनटू कितना रुपये, कितना दे रहे? 99 रुपीज दे रहे. समझ में आ रहा है? हम लोग को जो ऊपर का फ्रैक्शन है, डेसिमल है, उसके लिए हमें कैश देना पड़ेगा. उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा. सो 0.666 into 99, we are getting 65.99, which is equal to 66 rupees, which is equal to 66 rupees. 65.99 is 66. So हमें मिला 66 रुपीज इन कैश. और फ्रैक्शन जो एडिशनल है वो हम कैश में एडजस्ट करेंगे. जो फ्रैक्शन एडिशनल है दैट वी विल एडजस्ट इन कैश. तो इसके अलावा कैश में और भी है. कैश में क्या बोला है कि जो ऊपर का है दैट इज जो 60 रुपीज हमें डिफरेंस आया है वो हमें कैश में देना है. जो 60 रुपीज डिफरेंस में आया है वो हमें कैश पे देना है. तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्किंग नोट में इन कैश. इन कैश क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर एक 3 शेयर के लिए कितना रुपीस मिलेगा? हर एक 3 शेयर के लिए 60 रुपीस मिलेगा. रुपीस 60 मिलेगा इन कैश. रुपीस 60 मिलेगा इन कैश. तो इसका मतलब टोटल शेयर तो 10,000 है. टोटल नंबर ऑफ शेयर तो 10,000 है. तो 10,000 के लिए 10,000 के लिए 10,000 के लिए कितना 10,000 के लिए कितना कैश मिलेगा? डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. 10,000 into 60, 10,000 into 60 डिवाइड बाई 3. तो कितना मिल रहा है? क्या जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो. 10,000 into 60 divide by 3, we get 2 lakh. We get 2 lakh. We get 2 lakh रुपीस. कैश में कितना मिलेगा? कैश में मिलेगा 2 lakhs. कैश में मिलेगा 2 lakhs. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 lakhs. तो कैश में मिलने वाला है 2 lakhs. तो when we add all this, we get the total PC. We get the total PC, which is equal to how much? Add all this, you will get 18,50,000. 18,50,000. So PC भी मिल गया 18,50,000. अभी क्वेश्चन में डिस्चार्ज के बारे में बोला, पीसी एंड हाउ इज इट डिस्चार्ज. तो शेयर्स कैसे अलॉट होगा? शेयर्स कैसे अलॉट होगा? कैसे डिस्चार्ज होगा? अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स ऑफ कौन सा कंपनी अब्सॉर्ब हो रहा है? चैतन्य लिमिटेड. चैतन्य लिमिटेड. ये हम इसको
डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी बोल सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ पीसी कैसे है ये, हाउ टू डिस्चार्ज दिस, यहाँ पे क्या मिल रहा है 16,666, कैसे शेयर्स कैसे अलॉट हो रहा है, तो 16,666 शेयर्स है, बट पेड अप वैल्यू तो ये जो कंपनी का पेड अप वैल्यू है ये 675, देखो पेड अप वैल्यू कितना है, पेड अप वैल्यू है न्यू वेव का 75 रुपीज, तो पेड अप वैल्यू 75 है, तो पेड अप वैल्यू रुपीज 75 कितना होएगा, कितना होएगा 16,666 इंटू 75 इज इक्वल टू 12,49,950, और ऊपर का जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट विल बी द प्रीमियम, जो ऊपर का एक्स्ट्रा दे रहे 99 रुपीज दे रहे, तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा है दैट इज 99 minus 25, that is which is equal to 99 minus 75 which is equal to 24 rupees, रुपीज 24 इस प्रीमियम, ये रुपीज 24 क्या है जो हम 99 रुपीज में ये शेयर को वैल्यू कर रहे हैं, पर शेयर का पेड अप वैल्यू तो सिर्फ 75 है, तो 99 में जो ऊपर का है वो प्रीमियम है, वो मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा, it is 16,666 into 24 which is equal to 3,99,984, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमने जितना शेयर्स दिया है 16,49,934 हो जाएगा, मतलब पीसी कैसे शेयर्स कैसे अलॉट होगा शेयर होल्डर्स को, उनको 16,666 शेयर्स मिलने वाला है 99 रुपीज का, पर कंपनी का पेड अप वैल्यू तो इस 75 ओनली, 75, तो ऊपर का जो मिल रहा है 99 में 75 माइनस करके 24 दैट इज द प्रीमियम, तो दोनों को हमने ऐसे अलग से बताया तो भी इट इज कमिंग टू द सेम अमाउंट 16,49,964, तो विद दिस हमारा पीसी जो पूछा था क्वेश्चन में वो हो गया एंड दिस सम इज डन, this sum is done. Homer Limited and Iliad Limited proposed to amalgamate. So in this sum, we can see that there are two companies, Homer Limited and Iliad Limited. They are wishing to propose to amalgamate. So goodwill may be now they have given the revised value of the asset. Goodwill may be taken at rupees 96,000 for Homer Limited and 38,000 for Iliad Limited. The stock of Homer Limited and Iliad Limited to be taken at rupees 2,04,000 and 1,42,000 respectively. New value of the stock is given for both the companies. You are required to find out the purchase consideration receivable by both the companies on the basis of the net asset method. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों कंपनी, बिकॉज इससे पहले वाले सम में वन कंपनी वॉज अब्सॉर्बिंग द अदर कंपनी, इट वॉज अब्सॉर्प्शन का सम, दिस इज अमालगमेशन, प्योर अमालगमेशन. न्यू company is formed by taking over two existing companies. तो होमर लिमिटेड भी है, इलियाड लिमिटेड भी है, ये दोनों को लेकर एक नया कंपनी स्टार्ट होगा. दिस इज द केस ऑफ प्योर अमालगमेशन.
एक और होता है अब्जॉर्प्शन, जिसमें एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है। उसके बाद एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें एक ही कंपनी होती है, लॉस नॉर्मली इट मे बी अ सिक कंपनी incurring losses and it comes up with a new name, that is external reconstruction. So ये प्योर अमालगमेशन का केस है. So they ask us to prepare the purchase consideration for both the companies net asset method. तो उनका बैलेंस शीट यहाँ पे दिया है, यहाँ इक्विटी शेयर है, रिजर्व्स है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, फिर फिक्स एसेट है, लेस डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक का नया वैल्यू भी दिया है, फिर डेटर है, कैश बैंक बैलेंस है. सो लेट अस स्टार्ट द नेट एसेट मेथड. अंडर लेट अस कैलकुलेट purchase consideration by net asset method. Purchase consideration by net asset method. By net asset method, purchase consideration by net asset method. So what we will do, I will insert the for both the companies with two. हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंपनीज का पीसी निकाल लेते हैं. इट इज पर्टिकुलर्स और दो कंपनी का नाम जो भी है, होमर एंड इलियाड. तो यहाँ पे लेट अस एडजस्ट विद द कॉलम्स. अभी हमें बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना, तो हम टोटल कॉलम नहीं प्रिपेयर कर रहे, बिकॉज अगर हम टोटल कॉलम जब सम्स फुल फ्लेज सम स्टार्ट करेंगे तो हम टोटल कॉलम भी प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज टोटल कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए होता है टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. टोटल कॉलम रहेगा इधर, तो बैलेंस शीट में हम डायरेक्टली, बिकॉज नया कंपनी जो फॉर्म होगा वो दोनों के असेट्स एंड लायबिलिटी को लेके फॉर्म होगा, तो ऐड करके यहाँ पे हमें टोटल कॉलम भी चाहिए होगा. हम इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, दोनों को ऐड करके नया बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो इसलिए हमें टोटल कॉलम भी चाहिए होगा. बट अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन में सिर्फ पीसी प्रिपेयर करना है, पूरा सम नहीं कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने टोटल कॉलम अवॉइड किया है. नहीं तो when we will be doing the full sum net asset method होगा, तो हम दोनों कंपनी के साथ साथ हम टोटल कॉलम भी प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम बैलेंस शीट में टोटल असेट और लायबिलिटी का लिख सके. तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल असेट्स टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी in revised और न्यू वैल्यू. तो जो भी दिया है हम वो लिखेंगे. तो सब असेट लिखो, क्या क्या असेट है हमारे पास. फिक्स असेट है 4 लाख 1 लाख, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिक्स असेट लिखते हैं. तो फिक्स असेट 4 लाख है और 1 लाख है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 लाख और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 लाख. नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू लिखेंगे. फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, इसका भी नया वैल्यू नहीं दिया. वी कैन सी इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ होमर में है 1 लाख का. इट इज नॉट देयर इन इलियाड, तो उसको विल राइट ब्लैंक. फिर करंट असेट में हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक का नया वैल्यू दिया है, हमने क्वेश्चन रीड किया तब भी सौ नया वैल्यू इज देयर फॉर स्टॉक. ये ओल्ड नहीं लेंगे, न्यू लेंगे. 2 लाख 4 एंड 1 लाख 42,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख 4,000 और यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख 42,000. फिर डेटर और कैश बैंक का नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू ही लिखेंगे. कैश एंड बैंक दोनों लिख रही हूँ, और इनका नया वैल्यू नहीं दिया तो ओल्ड वैल्यू ही लिखेंगे 1,70,000 and 30,000. or in Iliad it is 60,000 and 10,000. और कोई asset बाकी है, is there any other asset left down which we have not considered? बैलेंस शीट का सारा असेट लिख लिया, कोई और असेट है जो हमने नहीं लिखा जो यहाँ पे आएगा. डू यू रिमेम्बर, यहाँ पे एक और देखो, गुडविल का नया वैल्यू दिया 96,000 और 38,000, तो वो लिखना है हमें यहाँ पे. तो गुडविल का नया वैल्यू दिया है 96,000
एंड 38,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 96,000 एंड 38,000। तो जब नेट एसेट मेथड है तो उसमें मैक्सिमम टाइम गुडविल का नया वैल्यू दिया रहेगा, तो हमने यहाँ पे भी दिया है। तो अभी हमें इसका टोटल चाहिए, वी वांट द टोटल। टोटल आ जाएगा टोटल ऑफ ए, फिर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे बी, external liabilities, all external liabilities taken over by all external liabilities taken over by purchasing company, taken over by purchasing company। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एसेट में हमने और एक्सटर्नल लाइबिलिटी ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल इज नॉट एक्सटर्नल, रिजर्व सरप्लस इज नॉट एक्सटर्नल, ओनली करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर इज एक्सटर्नल 1,50,000। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, विच अमाउंट इज 1,50,000। So 1 lakh and here it is 50,000। तो हम क्या करेंगे, टोटल बी, टोटल बी, तो ये टोटल तो सेम आएगा 1,50,000। तो यहाँ पे ये सबको ऐड करो, टोटल ऑफ ए ऐड करो, 4 lakh, it is 4 lakh, 1 lakh, 2 lakh 4,000, 1 lakh 70,000, 30,000, 96,000, you will get how much, 10 lakhs। फिर यहाँ पे भी सब ऐड करो, 1 lakh, 1 lakh 42, 60, 10, 38, you will get 3,50,000। सो पीसी कितना मिलेगा, पीसी कैसे निकालना है, परचेज कंसिडरेशन विल बी ए माइनस बी, परचेज कंसिडरेशन विल बी ए, दैट इज टोटल नेट टोटल असेट, बी इज टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये हो जाएगा 9 लाख और ये हो जाएगा 3 लाख। विद दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।